everyone. A very logical day to all of you. And let's see what we have in the first editorial of the Indian Express, March 22. A little different from what we have been reading in the last few days. And this is the tiger's tail. Okay, tail means story. तो टाइगर की अब क्या कहानी है ये हमने कई सारे महीने पहले पढ़े थे न्यूज़पेपर में, poaching and all that. So let us see what we have new now. So, the reading part of this article. In the early years of this century, tiger poaching went out of control in several protected areas in the country. It went out of control मतलब poaching बहुत ज़्यादा होने लगी थी, control से बाहर हो गई थी. By 2006, the animal's population had dwindled to less than 1400. अब अगर हमें इसका मीनिंग नहीं आता है dwindle का समझ में, तो भी हम समझ सकते हैं क्योंकि पोचिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी. इसका मतलब ज्यादा टाइगर्स हंट किए जा रहे थे और क्योंकि ज्यादा टाइगर्स हंट किए जा रहे हैं, दैट मीन्स इट विल ब्रिंग अ डाउनफॉल इन द number of tigers available, not available but present. Since then, concerted conservation efforts have led to an appreciable recovery. India today has more than 3600 tigers. ये बढ़िया. However, अब यहाँ आ जाता है twist. In recent years, experts have flagged a significant number of tiger deaths that remain unaccounted for. ये आ गया ऑथर का फर्स्ट मेजर कंसर्न. पिछले कुछ सालों में, कितने सालों में, आई थिंक सो इट इज इन रीसेंट ईयर्स, सो 3-4 years only, there are many deaths of the tiger that are unaccounted for. मतलब रीजन नहीं पता या होने ही नहीं चाहिए या it has not been logged. ठीक है, हमने कल एक वर्ड किया था logged. The needle of suspicion points towards poachers. ठीक है, क्योंकि अनअकाउंटेड फॉर डेथ्स हुई हैं टाइगर्स की, तो फिर कहीं ना कुछ तो पोचर्स ने किया होगा, शिकारियों ने किया होगा शिकार टाइगर्स का. ठीक है, तो ये हो जाता है ऑथर का फर्स्ट पॉइंट, दैट दे आर स्टिल under suspicion, that people or the poachers are still very active. Now, an investigation of this newspaper by this newspaper, it tracked arrest records and court documents and interviewed former poachers who have become informers, has revealed that illegal traffickers in animal parks have claimed at least 100 tigers in the past 3 years. ये आ जाता है डेटा जस्टिफाई करने के लिए ऑथर की पॉइंट कि हाँ पोचर्स वापस से बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए और एनिमल पार्ट्स का इन्होंने इलीगल ट्रैफिकिंग किया है या उसके डॉक्यूमेंट्स या उसका कुछ डेटा मिला है. Now, poaching networks today are leaner and more mobile compared to 20 years ago. The poachers are also savvy vis-a-vis the digital medium and are active on social media. Worryingly, law enforcement agencies are being forced to play catch-up. They have become more active, and these people have to play catch-up. They are forced to play catch-up. मतलब तुम आगे आगे और हम पीछे पीछे. ठीक है, ऐसा होता है ये. तो ये हो जाता है कैच अप. दे आर स्टिल ट्राइंग टू कीप अप और कैच दोस पीपल. सो द पोचर्स आर ऑलवेज अ स्टेप अहेड of these agencies, right? So this also combines to become a point. So we have this, that there are many deaths unaccounted for, जो कि एक बैकग्राउंड जिसे बन जाता है. काम किसका है? ये पोचर्स का काम है, ये उसका पॉइंट हो जाता है. फिर इसने डेटा दिया जहां से इसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, पता चला, और फिर वो एक नतीजे पे पहुंचा कि ठीक है, ये जो पोचर्स हैं बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और ये जो एजेंसीज हैं वो उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ लगा रही है अभी भी. सो दे आर फोर्स्ड टू प्ले कैच अप, राइट? अभी तक वहां तक पहुंचे नहीं हैं ये एजेंसीज. दैट वाज द इन्वेस्टिगेशन डन बाय इंडियन एक्सप्रेस. ठीक है. Now, after the tiger crisis, the government revamped the country's conservation edifice. National Tiger Conservation Authority established in 2007. टाइगर क्राइसिस हुआ था 2000 में, 2005 में, तो 6 में, 7 में हमने देखा था ना. अगर हम टाइमलाइन पे फोकस करेंगे तो हियर by 2006 annual population had dwindled to less than 1400. जब ये इतना कम हो गया एनुअल पॉपुलेशन, तो जाके इन्होंने काम करना शुरू किया और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बन गई 2007 में. It discarded the approach that focused solely on protecting the animal in individual parks.
इट डिस्कार्डेड द अप्रोच, मतलब ये अप्रोच जो था कि नहीं हम इंडिविजुअल पार्ट्स में ही इनको संभाल के रखेंगे, तो ये वाला जो उनका एक्शन था उस चीज को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया कि हम सिर्फ प्रोटेक्शन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोटेक्टिंग द एनिमल से काम नहीं चलने वाला, तो आगे और कुछ भी करना पड़ेगा. सो रिकॉग्नाइजिंग द फैक्ट दैट द एनिमल्स आर मोबाइल, it emphasized the need to conserve them as a meta population, interbreeding tigers in geographically connected reserves. A centralized wildlife crime control bureau was established to tackle the poaching cases. तो यहाँ पे उन्होंने इंटरब्रीडिंग कर ली ताकि पॉपुलेशन बढ़ती जाए, क्योंकि ट्विंडल हो गई थी, कम हो गई थी. उसके बाद उन्होंने यहाँ पे क्राइम कंट्रोल ब्यूरो लगा दिया, तो पोचिंग केसेस को टैकल करने के काम आ गई. However, the CBI and the Directorate of Revenue Intelligence have continued to pursue animal trafficking cases. इन दोनों ने भी किया है ट्रैफिकिंग केसेस, एनिमल ट्रैफिकिंग केसेस को परस्यू कर रहे हैं, बट दीस एजेंसी रेयरली कोऑर्डिनेट विद ईच अदर. ये एक और कंसर्न आ गया ऑथर का कि देखो अब यहाँ से क्या होता है कि व्हेन द ऑथर रेजेस दिस कंसर्न दैट दीज एजेंसीज आर वर्किंग फॉर द पोचिंग केसेस ओनली, राइट, but then they rarely coordinate with each other. दिया है ना. तो जब ऑथर ने कहा कि दीज एजेंसीज रेयरली कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, इसका मतलब ये हुआ कि उसके हिसाब से उसके ओपिनियन में ये जो अलग अलग एजेंसीज काम कर रही हैं एक ही टॉपिक को, एक ही प्रॉब्लम को लेके, इन्हें आपस में कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए, तो जाके एक कंसर्टेड एफर्ट्स उस डायरेक्शन में लगेंगे, so that they are able to tackle this question holistic, this problem holistically, right? So, but this is not happening. So the author stated only this concern, but all the other things we can understand. So whether there's a question of assumption or there's a question of inference, we can understand it from this single sentence only. What is the opinion of the author? That they should coordinate. Assumption, unke coordination say it, the problem will be better tackled. That is the assumption, and therefore he says he is of the opinion that they should coordinate. Understaffed state forest departments too do not keep track of poaching incidents outside the areas of jurisdiction. Right? So now these forest departments, they are already understaffed. Right? Now again understand from this sentence. The moment the author mentions understaffed है, इसका मतलब अगर बराबर staff होती है, बराबर लोग होते, तो ये outside the jurisdiction के भी काम कर लेते. ये उनका assumption है. ठीक है ना. तो उसने कहा अंडरस्टाफ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स टू डू नॉट कीप ट्रैक ऑफ पोचिंग इंसिडेंट्स आउटसाइड द एरियाज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन डिस्पाइट द फैक्ट दैट सिंडिकेट्स ऑपरेट अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स. जो सिंडिकेट्स हैं वो तो अक्रॉस द मल्टीपल स्टेट्स तो काम करते ही हैं. ठीक है, ऐसे नहीं स्टेट वाइज सिंडिकेट नहीं बनता कि चलो इस स्टेट के जितने भी जानवर हैं, जितने भी टाइगर्स है, उसे मार के हम बेच देंगे. ऐसा नहीं है. एक पूरा एक माफिया, पूरा एक सिंडिकेट है. जब सिंडिकेट्स ऐसे काम करते हैं तो फिर जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्हें भी तो ध्यान रखना चाहिए ना, उन्हें भी कोऑर्डिनेशन करना चाहिए. Now, at the same time, there is enough evidence to show that tigers today do not confine themselves to the boundaries of reserves and move out in search of mates and prey. Right? So that means because it was already said in the previous paragraph that they are mobile. ठीक है, आराम से इधर उधर घूमते फिरते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने वो इंटरब्रीडिंग वाला सेंटेंस दिया था. अब यहाँ पर भी इफ दे मूव आउट इन सर्च ऑफ मेट्स एंड प्रे, so that means what? That it will not, they will not be confined to only one jurisdiction area, no? Right. So if they are moving across the area, so these agencies, state forest departments should also be moving across the areas only. So they should be actually keeping a track of complete thing as a whole, complete region as a whole. So unlike 20 years ago, poachers do not necessarily have to enter a protected area to kill the tigers. So WCCB is ill-equipped to deal with this exigency. अब ये जो चेंजेस हुए हैं ना 20 इयर्स में, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. तो ये आगे बढ़ गए टेक्नोलॉजी के सहारे, पोचर्स आगे बढ़ गए, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट्स है ये अभी भी पिछड़ी हुई हैं. दे आर नॉट एबल टू कीप पेस विद द poachers and the way they are active. Agency has a sanctioned strength of just 10 wildlife inspectors who can gather intelligence, and nearly a fourth of the bureau's total posts are currently vacant. यहाँ पे एक और उन्होंने चीज दे दी कि देखो this is what is lacking in the agencies, right? So he is coming up with all the reasoning to establish
that these agencies are a step behind those poachers who are moving fast and far ahead. ठीक है, ये ऑथर की एक पूरी पॉइंट के हिसाब से आ जाता है. तो दिस इज लीडिंग टू द पॉइंट. ठीक है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली द पॉइंट, बट देन ऑल दिस इज लीडिंग टू द पॉइंट. Moreover, the regular inspectors are usually enlisted in the WCCB on deputation from paramilitary forces. Paramilitary forces से हटके अगर वो इधर आ जाते हैं तो फिर उनके पास बेसिक नॉलेज या बेसिक इंफॉर्मेशन इन एरियाज की है नहीं. दे लैक द डोमेन एक्सपर्टीज. ये अगेन एक और रीजनिंग आ गया कि हम क्यों उन पोचर्स से इतने पीछे ये एजेंसीज हैं. ठीक है. Now the poachers in contrast deftly use the dark web to plan their operations. Right? Deftly is expertly. They use the dark web. अब dark web है या deep web होता है या surface web होता है, वो क्या होता है वो सेशन के एंड में बताती हूँ तुम्हें, तब तक तुम समझ लो. अब अगर ये पोचर्स हैं तो वो डार्क वेब को यूज करते हैं to plan their operation. So it is something illegal sort of. Now, though conviction rates have improved post 2007, 2007 में वो anti poaching वाला बना था ना agency. Now, the lack of specialized staff to pursue investigation means that more than 90% of poachers who are nabbed escape punishment. So, if there is no staff or not much staff or not much specialized staff to pursue these investigations, यहाँ पे सिर्फ इन्होंने बोला था 10 वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर्स हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन परस्यू करते हैं. इतने बड़े दुनिया में, अपनी दुनिया में, इंडिया में 10 अगर ऐसे वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर्स हैं सैंक्शनड एजेंसीज के पास, तो फिर तो बहुत कम है ना. Specialized staff to pursue, lack of specialized staff to pursue investigation means that more than 90% of the poachers who are nabbed escape punishment, right? So they are not punished, impunity हो जाती है, वो हटा दिए जाते हैं. China is widely recognized as one of the world's largest markets for trafficked tiger parts from India. अब प्रॉब्लम क्या था? एनिमल पार्ट्स जो कि इलीगल ट्रैफिकिंग का हो रहा है. ठीक है, तो एनिमल पार्ट्स अगर इधर से उधर जा रहे हैं तो अगर यहाँ के लोग बेच रहे हैं तो फिर इसे खरीद कौन रहा है? दैट इज चाइना. This newspaper's analysis shows that the Northeast has become one of the biggest conduit of this illegal trade in the past 3 years. Past 3 years में more than 100 tigers died and the death was unaccounted for. ये हमें याद है ना first paragraph में से. However, enforcement agencies are yet to establish their presence along the new routes of the illicit trade. They and the conservation authorities should get their act together. ये आ गया ऑथर के पॉइंट. सब अलग अलग काम कर रहे हैं, कुछ अंडर स्टाफ्ड हैं, कहीं पे वेकेंट जॉब्स हैं, वैकेंसीज हैं लेकिन जॉब भरी हुई नहीं है, मतलब दे आर स्टिल वेकेंट पोजीशंस, राइट? तो दे शुड ऑल एक्ट टुगेदर. एक होलिस्टिक अप्रोच होगा ना, अटैकिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम ऑल द साइड्स. ये हो जाएगा. दिस इज व्हाट द ऑथर्स ओपिनियन इज. And this is what he was establishing the lack, the insufficiency, the inadequacy, the inability में भी ये सारी चीजें वो मेंशन कर रहे थे क्या करने के लिए या क्या कन्वे करने के लिए कि इन सब अथॉरिटीज को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए. So the momentum generated by the post 2007 recovery in tiger numbers should not be frittered away. ये नहीं होना चाहिए. Frittered away का मतलब होता है waste away. तो ये नहीं होना चाहिए. तो जो पोस्ट 2007 में इतना अग्रेसिव तरीके से टाइगर्स को बचाया जाने का काम चल रहा था, that should not be like wasted or squandered away, right? That is frittered away. So they should get hold of it. And if there is something lacking in individual agencies, so let them come together, coordinate, and then work accordingly to save the tigers there. Right, this is what the author's point would be, and I hope you have understood this much. We'll come to the main idea and see from where are we getting this. So see, concerted conservation efforts have led to an appreciable recovery. यहाँ पे था 2006 के बाद, उसके बाद से appreciable recovery हुआ है. लेकिन फिर पिछले 3 सालों में प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. तो we need to go back to those concerted efforts. That was a complete flow of idea of the author. तो वो हमें कैच करना है. तो उससे पहले ही बोल दिया था कि जो 2006 के पहले का प्रॉब्लम था उसके बाद से ये अगर इस्टेब्लिश हुआ है, जो सेकेंड लाइन में है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो इस्टेब्लिश हुआ था, तो उसके काम के हिसाब से कंसर्टेड एफर्ट्स हुए हैं और रिकवरी भी अच्छी खासी हुई है.
right? So the recovery was there, quite good, very good, but then there was a decline, and now what he's suggesting is that it should again come up. So they are leaner. Now he is talking about the poaching networks. तो यहाँ पे अब तक तो कंसर्टेड एफर्ट्स थे, अब तक सही थे. यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई. ठीक है. क्यों हुई? क्योंकि पोचिंग नेटवर्क्स जो है वो 20 साल से काफी आगे बढ़ चुके हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर लेते हैं, राइट? दे आर मोर मोबाइल एंड लीनर. लीनर का मतलब होता है स्ट्रीमलाइंड होना, उन्हें पता है कैसे करना है, क्या करना है, तो इधर उधर बिखरे हुए नहीं रहते हैं, पर उनका जो है पूरा रास्ता जो है दैट इज लाइक वेल डिफाइंड, राइट? तो दैट बिकम्स लीनर. Then recognizing the fact that animals are mobile, it emphasizes the need to conserve them, right? So this is only giving you the why the conservation is required, right? Conservation is needed. Why? Because there was a decline in numbers, right? So 2006 में you saw the decline in numbers. 2007 में you established these agencies, right? NTCA and all. And then there were different agencies, this plus another agency, but agency A plus agency B plus agency C working individually, but what is required is the coordination. So when the author says that there is a lack of coordination, that means he wishes that there should be coordination. अभी तो उसने पैसेज में कहा है कि यहाँ पे लैक है ना. देखो, दे रेयरली कोऑर्डिनेट. अभी मैंने तुम्हें समझाया था कि इसमें से हमें अजम्पशन मिल सकता है, कंक्लूजन मिल सकता है, इन्फ्रेंसेस मिल सकते हैं, right? So when the agencies tackle, or different agencies tackling the same matter, when these agencies coordinate, they can get a better hold of that issue. ये हो सकता है इन्फ्रेंस हमारा. ठीक है. दे रेडली कोऑर्डिनेट से हमारा assumption ये है कि कोऑर्डिनेशन इनको करना चाहिए, राइट? दैट वुड बी हेल्पिंग देम, ये भी assumption है. Now they do not keep track of poaching incidents outside. Again, this is giving you the reasoning कि how and why they are not coordinating and they are not taking an active step there, right? They say okay fine, हमारे jurisdiction में जो है हम उसी का ध्यान रखेंगे, और उसके बाद ज्यादा लोग भी नहीं है तो फिर they escape the punishment also, right? Another agency WCCB, even that is ill equipped. So these points are like giving you the lack or the limitation of different agencies, राइट? ये अलग अलग एजेंसीज की बात कर रहे हैं या डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं लैकिंग इन द वर्क है, राइट? नाउ व्हेन दीज पीपल दे लैक द domain expertise, now this is again the reasoning that is given कि why there is a lack. And on the other hand the poachers, इसके पहले भी उसने कहा था ये जो पोचिंग केसेस हैं, जो पोचर्स हैं, ये काफी आगे हैं. ठीक है. उन्हें डिजिटली भी अक्ल है काफी, जो 20 साल पहले थी उससे कहीं ज्यादा अक्ल हो गई है अभी. ठीक है. So now they use the dark web to plan their operations. That definitely is like adroitly. Then, however, enforcement agencies are yet to establish their presence along the new routes. Again, he is saying that they are yet to establish, right? That means what? अभी ये काम करना अभी बाकी है. अगर काम करना अभी बाकी है तो फिर ये जो कंजर्वेशन अथॉरिटीज हैं इन सबको एक साथ जुट के काम करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत काम करना बाकी है. सो हियर कम्स द ऑथर्स पॉइंट, द मेजर पॉइंट, दैट दे शुड बी वर्किंग टुगेदर. तो कंसर्टेड एफर्ट्स करें, वर्किंग टुगेदर करें. तो नाउ अंडरस्टैंड हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज वाज, that they came up with the limitations. He gave the problem, then the limitations of different agencies इधर उधर फैली हुई हैं, क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और फिर उनका ओपिनियन आ जाता है कि हाँ अब इन सबको एकजुट होके एक साथ करके काम करना चाहिए, तो जाके वो जो प्रॉब्लम है यू विल बी एबल टू टैकल दैट, राइट?
क्योंकि अभी 2007 के बाद से जो रिकवरी हुई है उसे हमें वेस्ट नहीं करना है. दैट इज शुड नॉट बी फ्रिटर्ड अवे. So enforcement agencies are playing catch up with tiger poachers. Very ऑब्वियस है कि कैचअप से ही हमें पता चल जाएगा कि कौन आगे है और कौन पीछे है. Investigation by this newspaper has revealed that illegal traffickers in animal parks have claimed at least, ये हो जाता है बेस. ठीक है, मतलब इंसिडेंट, फैक्ट, प्रेमाइस, जो भी आप बोल सकते हो. Now, Indian Express investigation shows enforcement agencies are playing catch up with poachers. This is very clear from the title also. And recent conservation gains must be protected. राइट. तो जितने हमने गेन्स किए हैं, जो भी हम जितने कदम आगे बढ़े हैं इस प्रॉब्लम को लेकर, उसे वेस्ट नहीं करना है. दैट शुड बी प्रोटेक्टेड. तो उसके कहीं आगे हमें और आगे जाना है, प्रोटेक्शन और आगे बढ़ाना है. बट एटलीस्ट जो हुआ है अब तक पॉजिटिव, we don't have to waste that away. Right. Now coming to the vocabulary part, let's see. पोचिंग आप कर सकते हो कि जो कि इलीगल हंटिंग कर लेते हैं उनको पोचर्स कहा जाता है. ठीक है. ड्विंडल्ड इज डिक्लाइंड, अनस्टेडी. अब एक एक फटाफट वर्ड लिखते जाएंगे. आई होप यू आर कीपिंग योर नोटबुक्स रेडी. राइट. दे हैव फ्लैग्ड. यहाँ पे फ्लैग में सिग्निफिकेंट नंबर मींस दे हैव पॉइंटेड आउट टू समथिंग. फ्लैग वही होता है, पॉइंटेड आउट टू समथिंग. ठीक है. Unaccounted for is a phrase that you can write in your phrasal verb section, right? तो unaccounted for आ जाएगा. Revealed is the opposite of revealed is concealed, right? So it is like exposed. आप उसका ऑपोजिट भी लिख सकते हो. रिवील्ड का ऑपोजिट कंसील हो जाता है. लीनर के लिए आप स्ट्रीमलाइन लिख सकते हो. लीन का मतलब होता है थिन. ठीक है. तो इसका बेसिक मीनिंग होता है थिन. तो अगर ये लीनर बन गई है, अगर ये नेटवर्क्स, इसका मतलब बहुत ज्यादा बिखरी हुई नहीं है. कम लोग होंगे लेकिन बड़ा स्मूथ रनिंग हो जाता है, उनका सीमलेस वर्किंग हो जाता है. सो इट इज वेल स्ट्रीमलाइंड. दे नो हु इज गोइंग टू कॉन्टैक्ट विच पर्सन. पूरा बढ़िया तरीके से हो जाता है. तो 20 साल पहले थोड़ा सा ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे. अभी तो टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, तो डिजिटल मीडियम हो गया है. So then they can very quickly come up with the understanding and all that work also. So they are active on the social media. खुद के coding decoding करते होंगे ये लोग. ठीक है. So they have become savvy. Savvy means expert. Now if you are a computer savvy means you know how to work on the computer. अब आजकल तो कई लोग कंप्यूटर पे काम तो कर ही लेते हैं, पर savvy बहुत कम लोग होते हैं. ठीक है. savvy, savient. तो savvy is intelligence से related होता है वो. Vis-a-vis means according to, with respect, according to, regarding or with respect to. ठीक है. तो savvy वर्ड अलग होगा आपका, vis-a-vis अलग होगा. ठीक है. रिवैम्प के लिए आप ओवरहॉल लिख सकते हो, पूरी तरीके से चेंज कर लेना. They structure, edifice is the structure, they complete organization. Discarded is to throw it away. Cast away, throw away, वो डिस्कार्ड हो जाता है. और कास्ट अवे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मतलब डिस्कार्ड तो आपको समझ में आ भी जाएगा, इजी वर्ड है. टैकल इज टू हैंडल और केटर और एड्रेस, राइट. टू डील विथ, इसके लिए फ्रेजल वर्ब्स दे रही हूँ. टू डील विथ, टू केटर, टू हैंडल. ठीक है. या टू एड्रेस. ये प्रॉब्लम्स होती हैं जिसे हमें डील करना पड़ता है, उसे टैकल कहते हैं. ठीक है. These agencies rarely coordinate with each other से आप assumption निकाल सकते हैं. ठीक है. आप इसमें से कंक्लूजन लिख सकते हैं और इसी में से आपके पास इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है. ठीक है. ज्यूरिसडिक्शन में यू हैव द रूट वर्ड ज्योर और ज्यूड और ज्यूस, राइट. दिस इज रिलेटेड टू लॉ.
और डिक्शन में से हमारे पास वर्ड है डिक, जो कि वर्ड या स्पीच या स्पीक से रिलेटेड होगा, ठीक है। EECH वाला कर दो आप, ठीक है। तो डिक से डिक्शन, डिक्शनरी ये आ जाएगा विच इज रिलेटेड टू द वर्ड्स। डिक्शन, word diction only can be related to the word speech, right? So you have jurisdiction, मतलब जहां पे आपने कुछ बोला और वो आपके अंडर, आपके jurisdiction में जो होता है उन लोगों को आपकी बात माननी पड़ेगी. So that is mainly the area that is under your control, right? That is your jurisdiction. So evidence में you have evidence, बड़ी easy सा word है, ये मत सोचो कि बड़ा easy word मैंने मार्क कर लिया है. उसमें मुझे रूट वर्ड देना है आपको विद, और विज होता है टू सी, ठीक है। विद से भी वीडियो आ जाता है, विज से विजुअल आ जाता है, मोर वर्ड्स यू कैन राइट देन। विद एंड विज का मीनिंग सी हो जाएगा। कन्फाइन देमसेल्व्स इज, कन्फाइन का मतलब हो जाता है लिमिट, रिस्ट्रेन, कंस्ट्रेन, राइट। कन्फाइनमेंट जैसा होता है ना, उनको बंद रखा जाता है, क्लोज्ड। सो दैट इज लिमिटेड, दे आर नॉट एबल टू प्रोसीड। एंड एक्सीजेंसी के लिए आप अर्जेंसी या इमरजेंसी लिख सकते हैं, ठीक है। अर्जेंट चेंजेस जो होते हैं, इमरजेंसी होती है तो ही चेंजेस होते हैं ना एकदम से। तो एकदम से जो चेंजेस होते हैं कई बार स्केड्यूल में जैसे होता है ना, सो इट कैन बी चेंज ड्यू टू एक्सीजेंसीज, ठीक है। देन डेपुटेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रांसफर कर देना, आप ऐसे समझ लो। डेफ्टली इज एक्सपर्टली, डेफ्ट इज एक्सपर्ट, राइट। एड्रॉइट, अडेप्ट, ये सब डेफ्ट के मीनिंग्स हैं। कोई भी काम बढ़िया तरीके से कर लेना, एक्सीलेंट इन योर वर्क, एंड यू आर डूइंग इट वेरी क्विकली ऑल्सो, सो दैट यू मीन्स यू आर अडेप्ट एट दैट वर्क, तो यू आर डूइंग इट डेफ्टली, अच्छे से काम करते हो। डेफ्टली का ऑपोजिट हो जाएगा क्लमजीली, राइट। क्रॉस का मतलब होता है ऑपोजिट, तो क्लमजी। इफ यू आर डेफ्ट इन योर वर्क और यू आर क्लमजी इन योर वर्क, तो डेफ्टली का मीनिंग क्लमजीली हो जाएगा, ठीक है। डार्क वेब होता है समथिंग दैट इज इलीगल, इलिसिट, इलिसिट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। नैब इज टू गेट होल्ड ऑफ, कैच होल्ड ऑफ। तो जिन जिन इनको पोचर्स को पकड़ा था वो बिना पनिशमेंट के ही छूट गए, ठीक है। कॉन्डुइट में हमारे पास डक्ट वर्ड आ जाता है, दैट इज द पाथ, ठीक है। डक्ट इसका एक रूट वर्ड आ जाता है, तो कॉन्डुइट हो जाता है उसमें। एंड फ्रिटर्ड अवे इज स्क्वांडर्ड और वेस्टेड, राइट, वेस्टेड अवे। अब फ्रिटर्स जो होते हैं, सिर्फ अगर हम फ्रिटर्स लिखते हैं तो पकोड़ों को, जो भजिए जो होते हैं ना, उनको फ्रिटर्स कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। और ये फ्रिटर्ड अवे एक फ्रेज है, मतलब इसे वेस्ट कर दो, इट शुड नॉट बी फ्रिटर्ड अवे, ऐसा है। लेकिन सिर्फ फ्रिटर्स, आई एम रिपीटिंग, सिर्फ फ्रिटर्स जो होते हैं इसका मतलब वो पकोड़े होते हैं। चलो, ये है आपका सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। ध्यान से देखेंगे, सरफेस वेब में वो चीजें हैं, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, जो कि सरफेस के ऊपर है, जो दिखाई देती हैं क्लियर, ठीक है। डीप वेब में हमारे पास ये चीजें हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, प्राइवेट फोरम्स, रिसर्च पेपर्स, नॉन इंडेक्स कंटेंट, ठीक है। ये सारी चीजें डीप वेब में होती हैं। दूसरा जो वेब होता है वो है डार्क वेब। अब डार्क वेब में प्राइवेट कम्युनिकेशन फोरम्स है, और TOR है, इलीगल ट्रेड है, इलीगल एक्टिविटीज है, ठीक है। तो ये वहां वाकई में वेब का ये डिस्टिंक्शन है, सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब, ठीक है। सो वी शुड नो दिस। So, from what to read, we have a world much like the 1930s business standard का ये एक article है. It's a very beautiful read. And then charting a route for IORA under India's chairship. ये हमारे पास है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है। ये जानना भी जरूरी है, और इंडियन ओशन वाटर्स जो है हमारे पास, उसके हिसाब से ये एसोसिएशन क्या करती है, क्यों बनाई गई थी, कैसे
So it will be a good read for your general awareness also. And then all American deportations, तो सारे American deportations जो हैं वो गलत है, नहीं है, सही हो सकते हैं, या क्या रीजन है, इसके हिसाब से अमेरिका का वर्जन क्या है, या whatever is being given here, we need to read it so that we are able to understand the other side of the coin too, right? So that's all for today. And stay logical, stay positive, be logical, and be positive. And see you soon. That's all. Thank you.